So all the students are here or not? Still only 13 students are here. Okay, no issue. Let's start. Yesterday we learned about the rank of correlation. That was the Spearman rank correlation. Now today we learn about the method of the least square. Method of least square. That is the topic of curve fitting. Curve fitting. We have two parts. First one, it is a straight line, and next one, it is a parabolic. We learn on the topic of curve fitting. On the curve fitting, we have to discuss on the straight line and the parabola. First, how it comes the straight line parabola. So we have to discuss on the method of least square. So here it is the method of least square. I have taken the uh, xy plane in which xy is a point on the x-axis, y is a point on the y-axis, and I have joined the x and y. That point is called the P, xi and the y. On this plane, I have taken a curve y is equal to fx. Suppose this curve is passing through this point, and this point. So this is called the error, and that error is denoted as E equal to yi minus fxi. What is yi and fxi? Y is equal to fx is a curve. This is the equation of the curve. This one which I have taken the curve, this is y is equal to fx. That curve passes through this line at the point, any point, this point and this one. So difference between these two, that is called the deviation, and it is denoted as the error, and that error is equal to yi minus fxi. इस fx को इधर किधर ले आओगे, ये ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएगा. What is the y? Basically we are talking on the straight line. We know that equation of the straight line is y is equal to mx plus c. Here I have used in place of m and c, a and b I have used. So I have taken yi is equal to a plus bx. It is the equation of the straight line, or we can say that it is the equation of the curve. Y is equal to fx भी एक कर्व है आपके पास में. उस कर्व को हम अगर बाइफ्रिकेट करें तो ये एक फॉर्म में आ जाएगा. वह कर्व में भी स्ट्रेट लाइन, मे बी ए पैराबोला, मे बी वॉट एवर इट इज. तो वो आपके पास में मैंने मान लिया y is equal to a plus bx. उसी को that I have written here, y is equal to fx be a curve, then error is equal to y minus what is this one, the deviation, which is called the error. The error is defined as the difference between the deviation between the obtained from the approximation of the y and the true value of the y. This is the obtained value and this is the true value. The so difference between these two is called the error function. So the square of the deviation, now we have to find the square of the deviation. That square of deviation s is equal to summation of e square and the value of e is equal to yi minus fxi. इसको मैंने स्क्वायर कर दिया. फिर उसके बाद में लिखा हुआ है if s is equal to 0 then yi is equal to fx lie on the curve, otherwise the sum will be either the minimum or the maximum. For the extreme point, when we can say that function is either it may be a minimum or maximum, in that case we have to define, we have to find out del s upon del a and del s upon del b equal to 0. When the function, if we have to find the variable of any function, in that case we have to find the differentiate, and the first differentiate should be equal to 0, then only we can find out the value of the variable. So this is the method of the least square. Now we will go ahead. If we have written all this, then I will go ahead. If you have to write, then please write down. This is the curve equation on the xy plane. Y is equal to fx is a curve. This curve is y is equal to fx. This curve is passing through this point, and when the x and y were joined at the point pxi, so difference between these two is called error, and error is equal to yi minus fxi. What is the meaning of this? This is the difference between the obtained and the true value. Fair?
उसी को हम आगे अगर निकालें, जो एरर हम कहते हैं, एरर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो एस इज टेकन एज द समीशन ऑफ द डेविएशन, समीशन ऑफ ई स्क्वायर, एरर का जो स्क्वायर करेंगे दैट इज कॉल्ड द सम डेविएशन। वही पुट द वैल्यू ऑफ ई आई पुट कर दिया और वो बता दिया अगर ये जीरो हो जाए तो ऑटोमेटिक आपके पास में ये कर्व आ जाएगा y इजिकल टू एफ एक्स, और वो कर्व पर शो हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? ए और बी। आप कहोगे ए और बी कहाँ आ गया? तो आई हैव सपोज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए एंड बी आर द वेरिएबल्स, सो आई हैव डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। उसको मैंने डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट डिफरेंशिएट को जीरो पुट कर दो और पॉइंट मेरा निकल जाएगा। इफ यू हैव रिटन दिस वन देन आई विल गो हेड, शुड आई रब दिस वन और आई शुड टेक टाइम? सर स्क्वायर ऑफ डेविएशन के नीचे नहीं दिख रहा सर। स्क्वायर ऑफ डेविएशन के नीचे अब दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अब नोट कर लो। एक शॉर्ट नोट में आता है ये, इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए सब चीजें। शॉर्ट नोट में आता है इसलिए हमें ये काम करना है। फर्स्ट इट इज a fitting of straight line, fitting of straight line, fitting of straight line, that s is equal to summation of e square, summation of yi minus fxi whole square, where I is equal to 1 to n. Now put x is equal to 1, I is equal to 1 to 3, y1 minus fx1 square plus y2 minus fx2 square plus y3 minus fx3 square plus dash dash yn minus fxn whole square. सर दैट इज के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर? दैट इज डेल एस अपॉन डेल ए इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल टू जीरो। मतलब एस को ए और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और उसको इक्वल टू जीरो करना है। नाउ वाई एन माइनस वाई वन माइनस एफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस एफ एक्स टू का स्क्वायर, ये सारे मैंने आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक लिया हुआ है। नाउ आई हैव टू पुट द फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो है उसको आप चेंज कर दो आप। तो ये आ गया y1 माइनस ए प्लस बी एक्स वन प्लस y2 माइनस ए प्लस बी ऑफ x2 प्लस y3 माइनस ए प्लस बी ऑफ x3 प्लस डैश डैश yn माइनस ए प्लस बी ऑफ xn whole square. It is a whole square. Now by the principle of least square, जिसमें s is minimum, put del s upon del a equal to del s upon del b equal to 0. del s upon del a और del b upon, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वो चेक करिए कैसे हो सकता है आपके पास में। डिफरेंशिएट किया 2y1 माइनस, मैं y i कर देता हूँ, माइनस ए प्लस बी ऑफ एक्स आई ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ith टर्म में ले लिया, वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड 2
वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई ब्रैकेट क्लोज माइनस का एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया डेल एस अपॉन डेल ए को जीरो किया था तब, डेल एस अपॉन डेल बी को जीरो किया तब। ये दो इक्वेशन आपके पास में तैयार हो गया। देखिए वाई आई माइनस एफ एक्स आई इक्वल टू जीरो। I have used I is equal to 1 to n, 1, 2, 3 dash dash up to the nth term. Function is equal to a plus bx1. If x1, so it is a plus bx1. Fx2, it is a plus bx2. X3, it is a plus bx3. Similarly, up to the nth term. So, by the principle of the least square, s is minimum. In that case, we have to put del s upon del a इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल टू जीरो। आप डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अगर वही ith टर्म का अगर हो, अगर इसी के अंदर में सपोज इन दिस वन ये मैंने कर दिया वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, इसको क्लोज करके होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट देखो आप, डिफ्रेंशिएट वी टू आगे लग गया, वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, मैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ए का क्वेश्चन क्या है -1, इसलिए -1 आ गया इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैं बी के रिस्पेक्ट में काम करूंगा, मैं यही दो आपके पास आगे आ गया, वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई, कोफिशिएंट ऑफ द सर ऊपर का दिख रहा नहीं है। the coefficient of the b is equal to minus bxi कर रहा हूँ ओनली xi, तो ये आ गया माइनस का xi इक्वल टू जीरो। तो मैंने डेल एस अपॉन डेल ए इक्वल टू जीरो किया तब ये आपके पास आ गया, डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल टू जीरो किया तब ये आपके पास में आ गया। ये दोनों इक्वेशन मेरा तैयार हो गया। अब करना ये चीज है, इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन तैयार करना है, और वो तैयार आपके पास इस फॉर्म में मैं करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए अब कैसे सॉल्व हो सकता है। ये -1 उधर चला गया, ये माइनस एक्स आई भी उधर चला गया, जीरो पे चला गया। इसका मतलब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वह इक्वेशन आपके पास से बन जाएगा एन ए इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई क्यों समीशन ऑफ द, एक मिनट मैं बता दूंगा, रुक जाओ। ए समीशन ऑफ एक्स, नहीं तो चलो एक बार चलिए यहाँ तो लिख लिया आप लोगों ने, ये तो लिख लिया, यहाँ तक तो क्लियर है। नीचे का रह गया, नीचे का रह गया है, देख रहे हैं? यस सर। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में मैं सीधे ऊपर मूवमेंट करता हूँ। मैं अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करूँगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मैंने लिख लिया, यही y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से अगर देखा जाए इस कंडीशन में यहाँ पर आओ, दो को जीरो पे ले गया, -1 जीरो पे चला गया, ये माइनस जो है उठ कर इधर आ गया आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास बन गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, समीशन कर दो आप, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू समीशन ऑफ a, what will be the summation of a, summation a क्या होता है, that is called na plus b summation of x। इसी इक्वेशन को अगर आप देखोगे नीचे, देखो यहाँ पर एक्स आई है लिखा हुआ, यहाँ एक्स आई दिख रहा है आप लोगों को, यस सर।
Yes, दिख sir. रहा है, इसका मतलब इस x से हमें इंटू करना है और वही ऊपर आ जाओ। मैंने इसी को x से इंटू कर दिया, तो समीशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू a समीशन ऑफ x प्लस b समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। कैसे करना है? इन द टेबलर फॉर्म x and y will be given to you. You have to find the x square, you have to find the x y, and we have to take the summation of x, you have to take the summation of x, summation of the y, summation of x square, summation of the xy, and the numbers in the data of x, that count that number and it will be n. So put all the values of the summation in the equation number 1 and equation number 2 and then solve. We get the a and we get the b. यहाँ जो कुछ भी आपके पास आ जाएगा a और b आ जाएगा, then put a and b in that equation, you will get a straight line. This is called fitting of a straight line. So when you see this equation in the last equation, 2yi minus a plus bxi minus 1 equal to 0. So minus 1 equal to 0 वो तो निकल गया, 2 भी आपके पास निकल गया. Then yi minus a plus bx we can write in the form this one, y is equal to a plus bx. Now taking the summation of the y, that summation of the y is equal to summation y, summation of a terms. A is a constant number and the constant number का summation अगर हम करते हैं, that is called n times of that number. If I have given you summation of the 2, what will the summation of 2? 2 का summation क्या होगा? n into 2, इसको 2n कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है? 2n हेलो, हाँ 2n कहते हैं. तो किसी भी कांस्टेंट नंबर को उसको n से इंटू कर दो, दैट मीन द समीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट. bx का समीशन करोगे तो x, bx का मतलब b का समीशन नहीं है, b तो स्केलर नंबर हो गया आपके पास में, x का आपके पास x का समीशन करना है. देन अगेन इन दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई विद द x एंड देन टेक द समीशन. तो x से मल्टीप्लाई करके समीशन किया हुआ है, x से मल्टीप्लाई करके समीशन किया हुआ है, x से मल्टीप्लाई करके समीशन किया हुआ है. तो व्हाट द समीशन वी गेट, एक x मिला हुआ है, y मिला हुआ है आपके पास में, x y है और x स्क्वायर है, ये चारों मेरे पास आ गया. x से x स्क्वायर निकालिए, x y से x y आ जाएगा, सारे को ऐड कर दो, जो भी वैल्यूज आपको यहाँ मिल रहा है, पुट ऑल द वैल्यूज इन द दिस टू इक्वेशन एंड देन सॉल्व फॉर a and b. पुट a and b इन दिस इक्वेशन, इट विल फिट अ स्ट्रेट लाइन. ये हमारा स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन from the least square. Have you noted this one? Yes, इसको sir. नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है. अब एक स्ट्रेट लाइन हो गया, सेकंड मेरे पास में पैराबोला है. तो पैराबोला कैसे होता है वो हम देखते हैं. See, what is the equation parabolic path या parabolic curve? It is a parabolic curve. पैराबोलिक का मतलब हो गया द डिग्री ऑफ 2, जिसमें n इज इक्वल टू 2 होता है, दैट इज कॉल्ड द quadratic polynomial. So what will the equation? That equation is y is equal to a plus bx plus cx square. I have used the parabolic curve in which the डिग्री ऑफ n इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये कर्व के विषय में बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का, एंड दैट सेकेंड ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक? जनरली वी राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हियर आई हैव यूज्ड a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर. कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, एक ही चीज़ है. नाउ टेक द समीशन ऑफ द y. समीशन ऑफ y, व्हाट इज द समीशन ऑफ a? n टाइम्स ऑफ a, that is b summation of x, c summation of x square. Again multiply this equation, this one multiply with the x, the summation of xy is equal to a summation of x plus b summation of x square plus c summation of x cube. Again multiply with the x square, और फिर से वापस से x से कर दो आप, एक ही बात है, पहले x से किया वापस x से कर दो, तो क्या सब बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बी समीशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समीशन ऑफ एक्स की पावर 4. You will get these three equations when the data is given to x and y.
these data will given to you. From this data, we have to find the x square, we have to find the x cube, we have to find the x to the power 4, then we have to find xy, then x square y. All these number you have to add, taking all the summation, सबका summation ले लो आप, सबका summation ले लिया, and the number in the data of x, that उसको count करो, it will n. Put all the summation in these three equation. Put all the value of summation of x, y, x square, x cube, x4, xy and x square y. Then put in these three equation and solve which method you know. जो भी मेथड आपको मालूम है उस मेथड से इसको सॉल्व करके यू कैन यूज द इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड, बाय सिंपल एलिमिनेशन मेथड, या किसी को पुट करके, जो भी आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको लगता है जो उसको सॉल्व करने से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल के पुट करके देखोगे, ये मालूम चलेगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, सो वी कैन फिट अ पैराबोलिक पाथ. In the question it will given you that fit a parabolic curve or fit a straight line. जो भी fit करने के लिए कहता है, if you have to fit a straight line तो y is equal to a plus bx. If you have to fit in a parabolic then y is equal to a plus bx plus c square. उसको फॉर्म को बनाएंगे, you will just make in the summation form. After that you will calculate all the values, taking the summation of all the values, and you put in the equation and solve it for a b c. This is your method of the least square. Now I will take some question how we have to fit a straight line and a parabola. This is your question. X and y 0, 1, 1, 1.8, 2, 3.3, 3, 4.5, 4 and 6.3. And the question is given fit a straight line to the following data. You have to fit a straight line. क्या करोगे आप? Fit a straight line. Fit a straight line. Then equation of a straight line is y is equal to a plus bx. Summation of y, it is n times of a, b of x. Summation of xy, it is a summation of x plus b summation of x square. Then take x and y. This is x and this is y. What is the value of x? 0, 1, 2, 3 and 4. What is the value of y? 1, 1.8, 3.3, 4.5 and 6.3. So x square 0, 1, 4, 9, 16. What is the value of xy? 0, 1, 0, 1.8, 6.6, 13.5 and 25.2. Add this one, this one, this one and this one. इन सबको आप ऐड कर लो. आप जब ऐड करोगे आप देन वैल्यू जो है ये तो हो जाएगा 10 आपके पास में, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10. वाई को समीशन को ऐड करो, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 1 7 4 11, 11 और 4 15 और 1 16, 16.9. 16 और 4 20, 9 1 10 30. ये 30 आ गया. 8 और 8 and 6 14, 14 5 19, 19 2 21, 2 7 10 17 1 3 4 47.1. 47.1. Now put all the values. What is the value of n? n कितना आपके पास में है? 5 आपके पास में हो गया. 1 2 3 4 5. Now put the value. Summation of y. What is the summation of y?
16.9. This is equal to 5 times of A plus B of summation X. This is the B. Summation of X क्या आपके पास में 10. यहाँ पर 10 of B आ गया. Now in the next equation XY 47.1. This is equal to A of X, that is 10A plus 30 of B. इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. A क्या है और B क्या है, उस A और B को इसमें पुट कर देना. दिस इज योर आंसर. तो फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, सॉल्व कर लो. ए और का बी का आंसर क्या है वो बता दो मुझे. फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 30 हो गया, एक्स का 10 है, वाई का 16.9. ऐड कर लो एक्स वाई को 47.1. सर B 1.33. बी कितना निकला आपका? 1.33. 1.33. हम्म 1.33 और ए 0.72 सर. 0.7. इसको पुट कर दो. y is equal to 0.72 plus 1.33x. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. जो फिट करने के लिए कहा था वो ये है अपने पास. ठीक है, चलिए हम आगे. Yes sir. Now look the next equation. X and y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 2, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 10 and 9. You have to fit a second degree parabola. इसको फिट करना है आपको. ठीक है, पैराबोलिक कर्व y is equal to a plus bx plus cx square. Summation form. Summation of y n times of a b of x plus c of x square. Again multiply with the x, xy, a summation of x, b summation of x square plus c summation of x cube. Again multiply with the x, then take the summation x square y, a summation of x square, b summation of x cube plus c summation of x to the power 4. Now take the data of x and y. This is x and this is the y. x में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. यहाँ पर आ जाएगा 2, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 10 और 9. अब क्या करोगे? You have to find the x square, you have to find the x cube, you have to find the x की power 4, then you have to find xy and then you have to find x square y. ठीक है, और n आपके पास में n is equal to 9 हो गया. पहले इन सबको सॉल्व करिए आप. टेक द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, सबके ऐड करो.
मुझे बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, वो एक्स और वाई दिख नहीं रहे हमें। अच्छा ठीक है, एक्स और वाई आपके पास में है, आप उसका टेबल बनाइए। उसको कॉपी मत कर लेना, क्योंकि मैं उसके आगे की चीज़ बताऊंगा। कल मैंने पीडीएफ भेजी हुई थी, उस पीडीएफ से कॉपी मत कर लेना सारी चीज़ें, वो आपको रेफरेंस के लिए है, just for your reference. Now you have to do this one. First solve it, then I will tell you how we have to find the value of all the uh, constant number, that is ABC. In this book it is done directly. You can't judge, you can't find, you can't say how the A and B C came here. So just do the square, x square, x cube, x4, xy, x square, जो भी आपके पास में है, and then we'll solve it. सारे कैलकुलेशन करिए आप, स्क्वायर क्यूब सब कुछ निकालना है आपको। निकल गए सारे।
ये सर सेम। सर हाँ बताओ। एक्स स्क्वायर 285 है ना? हाँ 285 तो लिखा है मैंने। 255 से लग रहा था इसलिए पूछ रहा था। एक्स स्क्वायर 285 तो लिखा है मैंने। ठीक है सर, ठीक है। देखिए नाउ सर थोड़ा सा नीचे करना है सर। now look, summation of x is equal to 45, summation of y is equal to 74, summation of xy is equal to 421, summation of x square that is 285, x cube it is 2025, x4 equal to 15333, x square is equal to 2771. It is 2771. Okay. यस सर। Now I have to solve this one. इसको मुझे सॉल्व करना है. वह सॉल्व कैसे कर सकता हूँ मैं? In the first semester or in the second semester, we have learned about the matrix. आपने 12th में पढ़ा होगा. In the second semester, you have learned about the matrix. Matrix में मैंने एक argument matrix लिया हुआ है. That C is equal to A oblique B. Now I have used the A and B combined. A का कोएफिशिएंट ये रहा और B का कोएफिशिएंट आपके पास में ये रहा. इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, सिर्फ पर्टिकुलर यही नहीं है. आप यहाँ पर इसको आप कहते हैं, इसको डिकम्पोजिशन मेथड भी कहा जा सकता है. तो यू कैन यूज द डिकम्पोजिशन मेथड ऑल्सो. अब मेरी कोशिश ये रहेगी
फर्स्ट कॉलम में, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, 9 को छोड़कर इन दोनों को जीरो करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर मेकिंग द जीरो, फिर सेकेंड कॉलम में इन दो नंबर को छोड़कर उसको जीरो करने की कोशिश करना। लेकिन ये भी नेक्स्ट स्टेप की बात है। इन द फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास में ये मैंने यहाँ पर जीरो करना। हाउ आई हैव टू मेक अ जीरो, सो आई हैव यूज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1. What is the number? 45 and 285. 45 should be here and 285 will be there. For making the zero in the second and third row, we have to use the R1 and the element of the R1 is 9 at the first place. So divide by 9 both the side. 9 से किया 9 5 से 45 और 9 से किया तो 9 3 से काटा 3 3 जा और 95 3 जा 285. You have to use this one in for the second row and you have to use this one for the third row. Then it will make a zero. वो zero कैसे बनता है वो आप देखिए। आप मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, इन सबको हटा दिया। अब देखिए C is equal to 9, 45, 285 and it is a 74. It is confirmed it will make a zero. What about the 285? 45 into 5. 45 into 5. That is 225. It is 225. 225 minus 285. It is called the 60. 2025. तो 2025 में मैं रफली यहाँ पे कर रहा हूँ 2025 माइनस 285 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर 2025 माइनस 5 5 ज़ा 25 2 8 5 ज़ा 40 और 2 42 5 2 ज़ा 10 और 14 आपका इसका आंसर ये 600 आपका सर it becomes the 600. Now the third one 421 minus 74 into 5 421 minus 5 4 is 22 7 5 is 35 and 37 37 का मतलब हो गया 30 आपके पास में ये हो गया और 21 ये हो गया 30 और 21 51 आ गया प्लीज। नाउ द थर्ड वन R3 ये कंफर्म में जीरो बनेगा 2025 माइनस 95/3 इंटू 45 2025 ये जो नंबर आपके पास है 2025 माइनस 95/3 इंटू R1 दैट इज 45 3 से काटा 15 95 इंटू 15 95 को 15 से इंटू करके 2025 में से माइनस करो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई 95 इंटू 15 एंड देन सब्सट्रैक्ट विद 2025 क्या आ रहा है आपके पास आंसर 600 ठीक है 600 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन क्या है 1533 माइनस 45/3 सॉरी 95/3 इंटू 285 का मतलब हो गया 95 का स्क्वायर करके 1533 में से माइनस करो आप 6308 कितना 6308 308 या 6308 08 सर 6308 ओके ये ध्यान रखना मैं तुम्हारी बातों पे चल रहा हूँ कहीं कल को कुछ दिक्कत नहीं हो जाए मुझे फिर आंसर अगर नहीं आएगा फिर देख लेना तुम लोग सही है सर सही है बिल्कुल 6308 यस सर जी सर बिल्कुल सही। चलो ओके नाउ नेक्स्ट 2771 माइनस 95/3 इंटू 70 इट इज हाँ 74 आप क्या करो ये तो कोई कैंसिल तो होगा नहीं आपके पास में यहाँ तो 3 1 सा 3 आपके पास 7 3 सा 21 2 आ गया 21 और 2 23 आ गया 6 और 8 आ गया माइनस
95 को 74 से इंटू करो आप, मल्टीप्लाई 95 इंटू 74, 7030 7030 7030 30 4/3, four to 7.66 4 to 7.66 एक मिनट, कितना आ रहा है? 10 4 to 47. 7.67 4 to 7.66 एक, अरे डिवाइड उसमें पॉइंटों में नहीं निकालना मुझे, यू जस्ट मेकिंग द फ्रैक्शन। सर 428 428 428 कैसे आ जाएगा? 3 में से 0 गया, 3 आ गया, 1 है, 1 में से 3 गया, 8 आ गया, 2 है, सर 2 आ गया, 1283 हो गया ना, 1283 अपॉन 3। इससे जा रहा है क्या? पॉइंट में जी आएगा सर, सर। इसी से आ रहा है सर, पॉइंट में आएगा सर। नहीं, पॉइंट में तो आएगा, मैं फ्रैक्शन में देखना चाह रहा हूँ, इसमें गलती ना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ गलत है। सर एक्स 21 2 21 और 2 23 6 2 8 5 का 20 2 36 और 2 38 7 5 35 3 63 और 3 66 8 5 13 6 3 9 1 10 7 7030 अपॉन का 3 आ गया, 10 में से 3 ये आ गया, 8313 7030, ये 3 8 और 3 11 2 और ये 1 1283, ठीक है, 1283/3, कोई बात नहीं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये क्लोज हो गया, इसको मैं लाइन ड्रॉ, नाउ आई हैव टू मेक दिस वन, दिस इज R3, ये हो गया R3 माइनस, इसे जीरो करने के लिए आपको ये यूज करना होगा R2, ये R2 क्या है 600/60, दिस इज इक्वल टू R3 माइनस 10 ऑफ R2, R3 माइनस 10 ऑफ R2, ये आपके पास आ गया R3 कह रहा हूँ, C दिस इज इक्वल टू 9 45 285 74 0 60 600 51 0 0, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 10 से क्या 308 आएगा, इसको 10 से मैंने इनटू किया तो 308 आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, कैसे करूँगा? 1283/3 माइनस 10 इंटू का 51, तो 10 इंटू का 51 का मतलब हो गया 1283 माइनस 3 3 एकम 3 5 दिया 15, तीस 3 5 दिया 15, ये आ जाएगा आपके पास में 1530 1283 60 4 2 माइनस 247 माइनस 247 भाई चेक कर लेना सही है कि नहीं है, यस सर देखो सही तो है आ रहा है सही, यस सर यही आ रहा है सही यस सर सही है सर। यस सही है। माइनस 247/3, अब ये मैंने तैयार कर दिया। नाउ ये आपके पास में A था, ये B है, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, 9A प्लस 45B प्लस 285C इज इक्वल टू 74, 60 ऑफ B प्लस 600 ऑफ C इज इक्वल टू 51, 308 ऑफ C इज इक्वल टू माइनस 247/3। सो मैं यहाँ इसको रब कर रहा हूँ, what will the value of C? That C is equal to minus
247/3 इंटू 308। कितना आंसर आया वो बताइए मुझे। -247/8×3 इंटू 9। सर ऊपर दिख नहीं रहा सर ये तो। -247 बाई 924 डिवाइड करो, कितना हुआ? मोबाइल से डिवाइड कर लो यार। 0.26। 0.26, वो भी माइनस में है। माइनस का माइनस sir, माइनस 0.26 माइनस का 0.26। आगे क्या है? 26 के बाद क्या आ रहा है? 2673। 73 sir, 3. 73। चलो मैं 3 पर रुकना चाहूँ, 7 होती है। देखो क्या यही आंसर आ रहा है? जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें मैं ये भी होगा। देखो तो C = है क्या उसमें? माइनस आ रहा है? यही आ रहा है। यही आ रहा है। यस सर। उसमें डायरेक्ट सॉल्व किया है। अब वो कैसे किया पता नहीं है। अब तो आगे का तरीका समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। अब C निकाल लिया तो B निकालो आप। तो B आपके पास में 60 ऑफ B प्लस 600 इंटू माइनस का 0.267 इज इक्वल टू 51। देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ B? B क्या आ जाएगा देखिए आप। 51 प्लस 0.267 इंटू का 600 होल अपॉन 60। क्या आंसर आएगा इसका? B is equal to 51 plus 0.267 into 600 whole upon 60। क्या आंसर आ रहा है B की वैल्यू? सर 3.52 3.52 प्लस में या माइनस में? सर प्लस में। Positive. 3.52। देखो तो वहां पर यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर यही आ रहा है। यस सर। यही आ रहा है। अब A और B और C आपको मिल गया। पुट द वैल्यू ऑफ B यहाँ पर पुट कर दो, C को यहाँ पुट कर दो आप, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। क्या A अपने पास वही आ रहा है क्या जो बुक में आ रहा है? A की वैल्यू जो है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ B और C, पुट करने के बाद में चेक करो A की वैल्यू वही है या कुछ और है। क्या रहा आंसर? यस सर सेम है सर। सही आ रहा है? सर 0.23 सर वही आ रहा Sir, है। minus 923 0.9. माइनस 0.923। ठीक है, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? सर माइनस में आ रहा है। वेरी गुड। Minus में आ रहा है सर। 0.9 समथिंग आ रहा है, यही ना? यस सर 0.9। 923। चलिए, A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया। सो Y इज इक्वल टू यहाँ A, यहाँ पर B रख दो, यहाँ पर C रख दो, फिर x²। ये हो गया मेरा आंसर। दिस इज योर पैराबोलिक कर्व। स्ट्रेट लाइन बता दिया, पैराबोलिक बता दिया। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ऑफ अ कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग का पूरा पार्ट अपना खत्म कर दिया। अब तो जितने क्वेश्चन, दो ही चीज है, आइदर इट इज अ पैराबोलिक और इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी मैंने आपको बता दिया, पैराबोलिक बता दिया। सिर्फ प्रैक्टिस की है, जो भी क्वेश्चन है वो करो। फिर और भी मैं एक्सरसाइज से, इस बुक में तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन दूसरे बुक से मैं क्वेश्चन निकाल कर आप लोगों को फॉर असाइनमेंट आई विल सेंड यू। ठीक है? Yes sir. ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।